Prime Minister Narendra Modi on Monday met Maharashtra Governor and NDA's Vice Presidential candidate CP Radhakrishnan in New Delhi. In a post on X, the Prime Minister wished him success, praising his decades of public service and experience. On Sunday, BJP President JP Nadda announced Radhakrishnan as the NDA candidate for the Vice Presidential election. Voting will take place on September 9. Radhakrishnan is the 24th Governor of Maharashtra. He earlier served as Governor of Jharkhand and also held additional charge of Telangana and Puducherry. A veteran BJP leader, he represented Coimbatore twice in the Lok Sabha and also led the party in Tamil Nadu. The Congress has criticized the NDA's move, calling Radhakrishnan another RSS man. The Vice President's post fell vacant after Jagdeep Dhankar resigned on July 21, citing health reasons. उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी जिनकी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एनडीए का घटक पक्ष होने के नाते शिवसेना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को शिवसेना का पूरा समर्थन है और पूरा उनको सहयोग है। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि उनकी जीत बड़ी जीत होगी और निश्चित रूप से उनको लंबे समय का जो संसदीय कार्य का अनुभव है, महाराष्ट्र के राज्यपाल पद का जो अनुभव है, उनके उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल में ये बहुत ही कारगर साबित होगा और देश को उसका फायदा होगा और इसलिए हम शिवसेना उनके साथ है और इसीलिए मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छा कैंडिडेट, एक देश के लिए काम करने वाला सच्चा इंसान उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। इसलिए मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। इस बारे में खुद स्वयं गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भी मेरे से बात की, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। It's a wonderful moment for all, joyous moment for all Tamil people, particularly the BJPians, because Mr. C.P. Radhakrishnan has been a very good friend, very good leader for BJP Tamil Nadu. He is a very, a simple person and man of integrity, man of purity, man of, sincerity. So, he has been doing a lot of things for Tamil people, particularly when he was the member of parliament in Coimbatore. He has served as choir board chairman and governor in many states, including Maharashtra now. So, we are happy that a Tamilan is becoming the Vice President of India, which is really a very great honor. I thank the Bharatiya Janata Party having trust on him and giving him this huge responsibility to take India to the next level. So, India Alliance have been saying that even though CP Radhakrishnan is from Tamil Nadu, they can't forget him. He has an RSS background. How do you see such criticism towards this? No, if they see RSS background, which is a national movement and a movement for secularism, I think then they are making a mistake. They should see him as a Tamilan. They should see him as a patriot belonging to a great RSS movement. And he is a very, very good person who has maintained relationship with everyone in Tamil Nadu, with all politicians. I hope the DMK also will definitely support, irrespective of what, as you said, India Alliance, like how Mamata Banerjee had once supported Pranab Mukherjee ji. So I think that should happen. Sir, hope you saw the governor's speech on Independence Day wishes. He have criticized Tamil Nadu way of education and various social discrimination issues. Chief Minister have reacted over there, saying that BJP Union government is doing cheap politics using appointed governor.
So how once again we can see the tussle between. See, what the governor has said is 100% right. What we are going through, what we are seeing through in the last 4 years, we have seen the discrimination right from Bengavayal up to, many schools in Tamil Nadu, and also the sexual assault on children, particularly girl children, by the teachers in the schools, and harassment to women. What is happening in Tamil Nadu now, and all these things, the law and order is very bad. What the Governor Ravi had told is 100% right. He is very, very clear. He is the constitutional authority, number one in person in Tamil Nadu. If he says that Governor is appointed by BJP, then the Chief Minister is appointed by Governor. He only has given him the oath. So that is okay, but still, because see, this is not the place for politics. You have to take his advices. You have to listen to what he says and correct yourselves. That is maturity. Always abusing the governor, you are not. It is not going to take you anywhere. In another 6-7 months, you are going home. देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट चूंकि खाली है, उसमें तो इलेक्शन होना ही था, तो एनडीए के पास संख्या है, वो अपना हिसाब से अपना कैंडिडेट उतारेगा, उसमें कहने की कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। अब उनके पसंद के, लेकिन एक है कि अब उनको किसी को भी लाए जो स्ट्रांग आरएसएस बैकग्राउंड होगा, ऐसे लोगों को ही लाते हैं। तो चूंकि उपराष्ट्रपति के पद राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनको निरपेक्ष होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड आरएसएस है, पहले आरएसएस किया, बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के स्टेट के प्रभारी रहे, लेकिन इस पद पे आने के बाद सबके लिए समान बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं जो एकदम स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से उठ के आते हैं, राज्यसभा में बैठ के भी एक पार्टी के साइड लेते हैं, जो धनखड़ जी भी वैसे कर रहे थे। ऐसा लगते थे कि वो बीजेपी के ही कोई स्पोक्समैन है या बीजेपी के कोई मतलब पोर्टफोलियो होल्डर है, इस तरह के कुछ मतलब हाव भाव उनके लगते थे। अब ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। तो ठीक है, वो कोई भी हो, या इंडिया के तरफ से भी कोई उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट ज़रूर होगा, फिर वो लोग वोट डालेंगे, सिलेक्शन होकर आएगा। जो भी आएगा, उपराष्ट्रपति का एक सम्मानीय पद है। हम यही उम्मीद करेंगे, आग्रह करेंगे, जो भी उपराष्ट्रपति बन के आए, राज्यसभा के चूंकि वो सभापति होते हैं, उनको निरपेक्ष होना चाहिए। पहले किसी भी बैकग्राउंड से आए, उसको बैकग्राउंड को छोड़ के एकदम सबको साथ चलने वाला आदमी होना चाहिए। मुझे तो चिंता दूसरी है। 2.5 साल पहले पश्चिम बंगाल के श्री राज्यपाल योग्य अधिवक्ता, जिनके मोदी जी ने बड़ी तारीफ की थी, धनखड़ जी को चुना गया था। ये 2.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रपति पद के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जरूरत पड़ गई? मोदी जी पहले देश को ये बताएं। दूसरा, जरा उस आवास का, यही है वाइस प्रेसिडेंट प्रेमाइसेस परिसर की पूजा पाठ करा लें। वो पहले उपराष्ट्रपति थे जो वहां गए थे, और वहां जाने के बाद वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। लोग अब इस संसद के बारे में भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जो है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इन दोनों का वास्तु विशेषज्ञ दिखवा लें और कोई कायदे के पंडित जी वगैरह को बुला के गृह शांति करा लें। सीपी रामाकृष्ण जी का जो नाम आ रहा है, तो उससे यही पता चल रहा है वो आरएसएस और बीजेपी के बहुत क्लोज है, और महाराष्ट्र में उनको जानबूझ के भेजा गया था कि महाराष्ट्र में जो गड़बड़ हो रही थी या होने वाली थी, उसको रुकाने के लिए या कंट्रोल लाने के लिए उनको यहाँ पे भेजा था, ऐसे हम कह सकते। अभी उनको उपराष्ट्रपति वहां पे बनाया जा रहा है, उनका अभिनंदन हम सब करते हैं, लेकिन धनखड़ साहब का क्या हुआ वो भी उन्होंने देखना चाहिए, क्योंकि धनखड़ साहब ने क्या किया था, तो उन्होंने जो विरोधी पक्ष है उनका एक प्रस्ताव आया था, सरकार को न पूछते उन्होंने वो सरकार स्वीकारा था। अगर आप देखो तो जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो सबके होते हैं, विरोधी पक्ष के भी होते हैं या सत्ताधारी के भी होते हैं, लेकिन जो सत्ताधारी है उनको ऐसे लगता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उनकी कठपुतलियां है। अभी ये जो नए सीपी रामकृष्णन जी है, वो अभी उनको वहां पे उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, तो शायद बीजेपी को ऐसे लग रहा है कि वो उनका सुनेंगे, ऐसे हो भी सकता है। लेकिन जब धनखड़ साहब बाहर आएंगे, अभी वो कहाँ पे वो देखने की जरूरत है, जब बाहर आएंगे तब वो क्या स्टेटमेंट देते वो भी देखने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति तो जगह खाली है,
और उसके बाद बन नहीं था। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? नए बन जाएंगे, अच्छी बात है। अभी क्या फैसला लेंगे हम लोग वो अलग बात है, बैठ करके फैसला लेंगे हम लोग भी। खैर, उससे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाहता था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको जो रिसिप्ट्स हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत करके आएंगे, क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है।